Can everyone see the screen? Screen दिख रही है सबको? Okay. So let's do warming up. Lokesh had always been a class topper in test and examination. However, invariably he used all means during exam to gain those high marks. Once, on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. Farhan had become desperate, so Lokesh offered to let him copy from his answer sheet, since Farhan just sat just behind him. Farhan refused. He said, "It is all right, even I get a zero, but I can call it my own zero. I do not want to score a single marks unearned. Cheating in exams if is for cowards, not me." These words were a turning point in Lokesh's life. He gave up cheating forever. He worked hard for what he desired and never, ever used small measure to acquire anything. I think so this story is related with every individual जब schools में हम करते हैं, but हम लोकेश जैसा इतने फटाफट डिसीजन तो लेते हैं नहीं है कि एक बार पढ़ के नहीं गए, एक आंसर मिल गया तो दोबारा से हम उसके ऊपर 0 मार्क्स करेंगे. And it will just give you a moral values while saying that you should never cheat in your examination. Though cheating is prohibition, it is not allowed just because you should have your own zero. The fact behind is that you should have your own zero instead of getting others' mark, instead of getting, the marks which is not yours. So better to have a zero. So ये तो जो short story थी, ये तो आप daily कर ही लेते हो. माइट भी हो रहा है इसमें भी अभी शायद आपको मैम के साथ कोई ना कोई थोड़ी बहुत चीटिंग वीटिंग हुई होगी. हाथ पे एक दो वर्ड लिखे होंगे, उसके आगे के सेंटेंस तो आप मास्टर हो ही बनाने में. एनीवेज, सो कुंजन, आर यू देयर? समझा? Till now you got it, Kunjan? Yes. Okay. So let's see. In this given story, words phrase can be replaced by the following ones. What could it be? Became aware. So in पूरे Realize. very good. इन पूरे पैराग्राफ में आपको एक स्मॉल वर्ड्स या फ्रेज निकालना है. So how you will understand? So when you read the this incidents, when you read ना, you get to know कि उसको इस टाइम पे पता चला था. It is much helpful. तो उस वक्त क्या पता चला था? लोकेश को रियलाइज हुआ था कि उसका क्लासमेट फरहान को मैथ्स पेपर उसने पढ़ कर आया इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री. So the first word will be realized. Second, always. Ever. Forever. Very good. Forever. Very upset and helpless. Desperate. 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 Cheating. Copying. Copying. Good. Next. Without working for it. Unearned. Unearned. Good. Without copying and उसे कुछ किया ही नहीं था, unearned था उसके लिए. A sudden change. Turning point. Turning point. Turning, turning नहीं बोलना है, turning. Then gain or achievement. Acquired. Acquire. Very good. Acquire anything or something. So these are the words that is used, that can be used instead of the other words. I hope all have got this. Next, summarize the incident in 6 to 8 lines, making Lokesh the narrator. So see, this is just an incident. So incident is what? When you speak something. कि आज ऐसा हुआ था, आज उसको ये हुआ था, आज उसको वैसा हुआ था, इसका ये प्रॉब्लम था, उसका वो प्रॉब्लम था. When you talk about it ना, so it is like you're just saying the story, but narrating, what narrating becomes I, like you are at the face. So this is how you will write.
See, summarize the incident in 6 to 8 lines, making Lokesh the narrator, beginning with I was always a class topper. So I can say Lokesh की जगह मैं start करूँ. So I was always a class topper. However, I used to fall means during my whole examination and gain high marks. Once on the day of history examination, I realized that my classmate, his नहीं आएगा. See, when you're changing, it doesn't mean that you will changing only Lokesh and putting I on that side. The tense will also change. Had का बन जाएगा now. जैसे I was. उसको हमको अभी let Lokesh realize that his classmate, that my classmate. Are you getting? So when you are writing this thing, when you submit me the इसका भी आप लोग PDF जब भेजोगे, make sure it become very much more hectic. Make sure whenever you write or you are changing something, highlighter लो या तो pencil लो या तो pen लो, just underline it that you are changing here something. So I will put on कि आपने सही changes किए कि नहीं. Understood? Next, you will do this summary by yourself. Okay. So our next topic is the thief story. Ruskin Bond, 1934. Ruskin Bond is like an author of British descent. He's well famous for giving us a moral values, for teaching us a good qualities of English learning. Plus his stories, जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज होती थी, it's like all age group can be understood. ये इनकी जो होती थी वो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के लोगों के लिए अवेलेबल है, इनकी स्टोरीज अवेलेबल है. And he is the best for children literature, because he has written many books for the children to understand. And in all the stories he has some kind of values input in his book. He's a good one as a publisher. I said he has composed many books. I have no records of how many books he had still composed, but still in India he is also a top leading, that he is known for his writing for children. So he lives with his adopted family in Landour in Mussoorie, India. The Indian Council for Children Education has recognized his role in the growth of children literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Bhera. For his published work in English, he was awarded in Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. For the best, as you can see, he got too many big achievements in his life, and these achievements cannot be get because of one or two books. It get because of long way. So from this we can see कि उन्होंने बहुत long way cross किया था books लिखने के लिए. This story is also an interesting story. यहाँ पर स्टोरी में ऐसा है कि ये वैल्यू आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, but the twist and turns बहुत अच्छे दिए स्टोरी में, just to make it more interesting to the 10th standard kid to realize that this is the time where you show up your personality. अभी 10th standard में तो mostly cheatings होती है, and if you caught cheating, you know what will be the drawback behind it. So why it has been put in this at this age, 10th standard में क्यों पूछा गया है? Here is your turning point of your life. 10th standard is your turning point, and when you are going to turn, you are going to be better or worse. Two condition will be applied, so it's up to you. Cheating को आप कैसे लेते हो? Okay, so we'll start. Make sure that you have a pen and book in your hand. All. In between, I may say anything or question answer, so you must write it down. Ajay, are you there?
किस कौन है? I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. See the story of thieves. See the first itself paragraph में कितनी गड़बड़ दी गई है. I was still a thief when I met. Who is I over here? कुंजन, I कौन है? राइटर Very good. हैंड, सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है? मैम जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। मेरे हाथ सक्सेस हो गए। स्क्रीन पे फोकस। फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल मैम मतलब उसकी सारी चोरी सक्सेसफुल थी, वो कभी हाँ। नहीं हुआ था। सक्सेसफुल हैंड मतलब क्या? मैं चोरी कर रहे हैं बहुत, इसको हिंदी में क्या बेटर वर्ड बोलेंगे? हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश से मोदी जी के लिए 2 मिनट वाला नहीं। हाथ साफ करना यानी चलते फिरते कि फटाफट चेन लेके भागना और पीछे से पॉकेट मारना या फिर कोई चीज बैग में हाथ डाल के, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल हैंड इन इंग्लिश। हम बोलते हैं ना हाथ साफ करके चला गया, पता ही नहीं चले। सो ऑथर यहाँ कह रहा है कि जब मैं मिला था अनिल से, मैं सिर्फ 15 साल का था, पर तब तक ये मेरे हाथ साफ हो चुके थे क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट था चोरी करने में। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Wrestling मतलब क्या है? What kind of game is this wrestling? कुंजन, तुझे तो पता ही होना चाहिए रेसलिंग क्या है। मैम वन टाइप ऑफ फाइटिंग। जो बॉक्सिंग करते हैं उसको बोलते हैं। मैम बॉक्सिंग अलग होता है और रेसलिंग थोड़ा अलग होता है। वेरी गुड, मुझे लगा बॉक्सिंग। और तो फिर ये सुल्तान पिक्चर में क्या था, बॉक्सिंग था कि रेसलिंग? रेसलिंग है। श्योर? हाँ उठा के पटक देने का एक दूसरे को, हाँ उसको रेसलिंग बोलते हैं। हाँ मैम वो WWF वो सब रहते हैं, वो बॉक्सिंग। वो बॉक्सिंग है? हाँ WWF बॉक्सिंग है? मतलब मैं तो इतना देखी नहीं हूँ, लेकिन 2-3 जन के नाम पता है जो मैंने बचपन में एक दो नाम सुने थे, जॉन सीना एंड ऑल दैट। तो लोग बॉक्सर है या रेसलर है। कंफर्म कर ले कुंजन, हिस्ट्री में भी चैप्टर है स्पोर्ट्स का। रेसलर हुए कि बॉक्सर हुए? वो रेसलर है वो लोग। उन लोग रेसलर है। पक्का एक दूसरे को उठा के पटकना उसको बॉक्सिंग कहते हैं कि रेसलिंग बोलते हैं? रेसलिंग होते हैं। Very good. So, okay. So Anil was watching a wrestling match when I approached, and the author approached. 25. How much difference was there between Anil and the author? Age gap कितना था? 10 years. 10 years. It was so easy. 15 or 25. A tall, lean fellow. So it is just, you know, वो अनिल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कितना हैंडसम था, कि कितना क्या था, बट इट सेड दैट ही वाज वेरी सिंपल लुकिंग गाय। और अनिल को लगा इसके तो मैं 12 फट से बजा दूंगा, बिकॉज ये तो सिंपल सा बंदा है, इसको तो मैं झेल लूंगा या तो ये मुझे झेल लेगा। इट वाज वेरी इजी। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब उसको वो बटर लगा रहा था, अरे तू खुद मतलब एक रेसलर दिखता है, वो तू भी तो कर ही सकता है। आई ऑथर अनिल को बटर लगा रहा है कि है ना, हम बोलते ना ऐसे तो कुछ कोई लहंगा पहनने से आलिया भट्ट बन नहीं जाता है, बट स्टिल बोलते हैं अरे ये तो दिख रहे ना, मेकअप करने से कोई बड़े फिल्म स्टार नहीं बन जाएगी। हाँ हाँ,
हीरोइन ने वैसा मेकअप की थी and all that. So these is like buttering. So this kind of buttering उसने उसको मारा. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do rest a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that keep me ahead of the police and my former employers. तो इस बंदे ने यहाँ एक अलग से झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है और उसने रीजन अपने आप से कहा कि मैं इसीलिए अपने आप का नाम चेंज करता हूँ ताकि मुझे आए दिन कोई भी पुलिस वाला पकड़े ना. सो ही इज लाइक उसका हर मंथ एक नामकरण होता है. सो ये मंथ उसका नाम था हरी सिंह. एंड हु इज अ फॉर्मर एम्प्लॉयर्स? मीन्स जिसके वहाँ वो चोरी करने गया था. हाँ, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी वो उन लोग से अपने आप को बचाता है जिन लोग से उसने पहले से अपना हाथ साफ करके बैठा है. फॉर एग्जाम्पल उसने सपोज मिसबा की कोई चीज चुराई है तो मिसबा उसके फिलहाल के लिए फॉर्मर एम्प्लॉयर्स बन जाती है. मतलब ऐसे ऐसे उसने अपने टारगेट बना के रखा था बट उसने किधर अलग नाम दिया है किधर अलग नाम दिया है तो दीज उसके एम्प्लॉयर्स बन जाते हैं. So the narrator changed his name. The question here it's why did the narrator change? Just to keep away from the police and the other former employers. Next, after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, and throwing each other. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. So अनिल क्या वॉच कर रहा था? रेसलिंग. ग्रंटिंग का मीनिंग दिया हुआ है मेकिंग लो गटरल साउंड. बोलो ना अरे इसको पटक दिया, अरे अरे ये भी गया, अरे इसको ही मार. हमारे फेवरेट होता है तो बहुत ज्यादा मार खा लेते बेचारे, बुरा लगता ना उनके, अरे पीटा गया, इसको उठा के अरे अरे. तो दिस काइंड ऑफ साउंड. सो वो थ्रोइंग एक दूसरे को देख रहे. फिर उसके बाद अनिल उठ के चला गया एंड उसके पीछे हरी सिंह आए. वो भी पीछे पीछे चला गया टू सी. हेलो अगेन ही सेड. आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वांट यू फॉर यू, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. तो हरी सिंह उसको बोलता है तो मेरे लिए काम करना चाहता है बट मैं तुझे तो पैसे नहीं दूंगा. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. Perhaps I misjudged my man. अब बेचारा हरी सिंह बोलता है ओए होए इसे तो मुझे पैसे देने से मना कर दिया है. मतलब मेरे आँख से धोखा हुआ है. मैंने एक गलत इंसान को पसंद ऐसे सोचा है कि मैं इसको लूट के जाऊंगा. तो ही से मैंने मिसजज किया है. I asked, can you feed me? Feed मतलब क्या? कशिश फीड मतलब क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कशिश Can give to eat. as both the students said, feed मतलब खाना खिलाना. बट फीड मतलब कि खाना खिलाना नहीं, उस वक्त की नीड पूरी करने को भी फीड कहते हैं. ही इज आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो उसको हरी सिंह अनिल बोलता है कैन यू कुक, तुझे खाना बनाना आता है. आई कैन कुक. मैंने एक और एक झूठ बोला. उसने बोला हाँ मुझे आता है. हरी सिंह बोला हाँ मुझे आता है खाना बनाना. हरी सिंह कुंजन आए, जो हम लोग आई की बात करते ना ऑथर की, उसका भी नाम रखे हम लोग ने क्योंकि उसका अपना नाम यहाँ पर बोला है कि हरी सिंह. तो हम हरी सिंह और अनिल. अनिल वो है जिसके घर पे हरी सिंह गया था. हरी सिंह चोर है. ओके. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल उसको कहता है
अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ. He took me to his room over the Jumna Street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. So अब उस ये पैराग्राफ है कि उस अनिल ने उसको बोला कि तू खाना बना. इसने झूठ बोला कि मुझे खाना बनाने आता है. ये गया तो उसे खाना बनाने, लेकिन उसे खाना इतना बकवास बनाया कि उसको वो खाना बेचारे कुत्तों को खिलाना पड़ा. तो उसने एक तो पहले झूठ बोला था, बट फिर भी उसको वहां टिकना था क्योंकि वो भाग कर आया था एक चोरी करके. उसको वहां अनिल को लूटने आया था, तो वो एक दिन में तो नहीं जाना चाहता था. तो उसने फिर भी उसको ऐसा दया वाली स्माइल देखकर अपनी चुपी चुपी बातों में घुमा घुमा कर कहा कि शायद ठीक है. तो उसने अनिल ने उसको बोला ठीक है तो यहाँ बालकनी में सो जा, तेरे लिए फिलहाल ये जगह है तो अभी सो जा, हम देखते क्या करना है बाद में. और अनिल हरी सिंह मस्क वाली स्माइल दे के, मस्क का स्माइल होती है ना, ऐसे स्माइल दे दे के अपने आप को बचा रहा था कैसे तो भी मैं बच जाऊँ उस घर में फिलहाल. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he had teach me to cook." He also taught me to write my name and said he will soon teach me to write whole sentence and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there will be no limits to what I could achieve. ये देखो भैया, ये तो पहले सोच कहाँ से कहाँ पहुंच गया. अब इससे क्या पता चलता है कि ये वाले पैराग्राफ में पता चलता है कि हमें अब तक पता था कि अनिल हरी सिंह एक स्मार्ट चोर है, ठीक है. अब ये पैराग्राफ में एक और एक चीज रिवील होती है कि हरी एक इलिटरेट पर्सन था, जाहिल पर्सन था, जिसको अपना नाम तक लिखने नहीं आता. और ये इंसान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है कि अगर मैं एक वर्ड लिख लूंगा, एक सेंटेंस लिख लूंगा, तो मैं बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी चोरी कर सकता हूँ. सी दिस माइंड पर्सन. Those who don't study, they think of too much big, and those who study, they think of very little thing. So यार उसको अनिल ने बोला ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा. तो अनिल ने उसको ABCD सिखाई. 15 years के बच्चों को ABCD सिखाई. उसको अपना नाम लिखना सिखाया कि हरी सिंह कैसे लिखते हैं. उसने कहा कि मैं तुझे रोज सिखाऊंगा, जैसे तू तेरा नाम लिख के सीख गया अब मैं तुझे 1 2 3 सिखाऊंगा. फिर उसके बाद तुझे सेंटेंसेस सिखाऊंगा कि किसी को सेंटेंस इंग्लिश में क्या बोलते हैं या कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं. ये सब सुन के तो हरी सिंह बोला अरे मैं तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बन जाऊंगा. मतलब उसने सोचा कि मैंने PhD पार कर लेना है एक दो वर्ड सीख के. एंड ही सेड कि मैं तो फिर बड़े बड़ों की चक्की छुड़ा सकता हूँ. मीन्स लाइक बड़े बड़े पैसे वाले डील भी कर सकता हूँ. अभी तो उसे तो छोटा बच्चा है ये 15 साल का, एट योर एज थोड़ी बहुत काउंटिंग आ रही थी जितना से चुराना था. बट वो बोल रहा है कि मैं पढ़ लूंगा तो मैं तो नोट भी ऐसे से काउंट कर लूंगा. नेक्स्ट. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि उसको अब घर पे रखा था हरी सिंह घर पे काम काज कर रहा था और अनिल बाहर जाके काम करता था. अनिल ने उसको रख तो दिया था, उसको सिखा तो रहा था, बट अनिल ने उसको एज अ काम के हिसाब से रखा था कि वो उसको दिन रात कुक करके देगा. बट ये हरी सिंह ने तो झूठ बोला कि उसको कुकिंग आती है. फिर भी कैसे तैसे तो वो पका ले रहा था. अब वो चाय बनाता था अनिल के लिए सुबह शाम और थोड़े बहुत खाने, और दिन भर का उसको जो सामान लाना होता था भाजी ये वो तो लाता था. इन सब से वो शाना क्या करता था, उसको अगर 5 रुपए देते थे तो वो 4 रुपए की सब्जी एकदम सस्ते भाव में लाता था और 1 रुपया अपने जेब में रखता था. ये बात अनिल को पता थी, बट अनिल ने उसको दिखाया नहीं कि मुझे पता है. ना हरी सिंह ने बताया कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ना अनिल बताया कि मुझे तेरी चोरी पता है. इट वॉज लाइक पता है बट बताया नहीं है.
नेक्स्ट, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. फिट्स एंड स्टार्ट का एक फ्रेज है जिधर लिखा है इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल. मतलब तुरंत ही उसने काम धाम शुरू कर दिया था अपना, कि छोटे से ही शुरू करूंगा और बड़े बड़े अमाउंट तक पहुंच जाऊंगा. तो उसका मेन मकसद यही था ना, भले 1 रुपया ही सही, वो 1-1 रुपए की चोरी कर रहा है, जब तक उसको खाने मिल रहा है खा रहा है. जिस दिन बड़ा हाथ लगेगा वो 1 रुपए जो कमाया वो भी, और जो चोरी करना है वो भी लेके भाग जाएगा. 9 तो 11 सीधा. He will borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, acquired ways to make a living. So यहाँ अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया है कि अनिल मेहनत कर करके बेचारा कमा रहा है. उसने क्या मेहनत, अनिल का काम क्या था? So यहाँ पर दिया है कि अनिल मैगजीन्स, दैट मीन्स ही वाज सम काइंड ऑफ राइटर. वो कुछ लिखता था और वो अपनी राइटिंग्स को बेचता था. अब तक हमें अनिल का काम नहीं पता था, हमें सिर्फ अभी तक हरी सिंह पता चला था कि जो उठा रहा है एक का माल और बेच रहा है दूसरे को. बट इन दिस पैराग्राफ वी लर्न दैट अनिल इज लाइक अ यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन. और तब उस टाइम पे मैगजीन्स का बहुत चर्चा होता था. मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट देना, आर्टिकल देने में ही लोग ज्यादा कमा लेते थे, और वो उससे हमेशा पैसे कमाता था. और जो भी घर का भाड़ा खाना उसका वही डेली चलता था. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. हरी सिंह ने उसको देखा कि एक बंडल लेकर आया है ये पैसे का, और उसको पता चला कि उसने अपनी एक बुक बेचा है, उससे उसने पैसे कमाए हैं. और अनिल ने क्या किया, वो सारे पैसे को अपने मैट्रेस यानी अपने गदेले के नीचे, तकिए और गदेले के बीच में रख दिया सारे नोट्स को. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunities for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अब यहाँ अनिल की थोड़ी डामा, हरी सिंह थोड़ा डगमगा गया है कि इसने पैसे लाए हैं. अब ये तो सुधर तो गया था बेचारा, ये तो सिर्फ थोड़ी सी चोरी कर रहा था दिन भर में से 1 रुपए की. अपने आप को बहुत शरीफ समझ में आ गया बेचारे ने. बट उसका ये शरीफ जो था वो कह रहा था मैं तो अब 1 ही रुपया चुराता हूँ, मैं कौन सा बड़ा बड़ा इसे घर में चोरी किया. बट अब ये तो मेरा हक बनता है ना, मैंने अभी तो 1 महीने से चोरी नहीं किया, अब तो मेरा हक बनता है कि मैं बड़ी चोरी करूँ इसे घर में, क्योंकि अब उसने पैसे देख लिए थे. तो उसने कहा कि ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे को खुद चल कर आई है कि जा हरी सिंह, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी हाथ साफ फिर से तू कर ले. तो ही इज लाइक अब तो पैसे आ गए, इसको मैं चुराता और चले जाता हूँ. बट अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर, और ये बेवकूफ इंसान ने मुझे घर की चाबी भी दे के रखा है, मेरे पे इतना भरोसा भी करके रखा है, जिसे पता नहीं कि एक बड़े चोर को इतना सारा लेकिन अपना घर की सारी तिजोरी दे के बैठा है. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो यहाँ इसने कहा कि जो इसने बेवकूफ चाले किया है, मुझ जैसे चोर पे भरोसा करके घर की चाबी दे दिया है, घर का सामान मेरे हवाले छोड़ दिया है. तो हरी सिंह को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था. तो चोरी करना ना उसके ऊपर अच्छा लगता है, जिसके पास बहुत हो और मैं चुरा के भाग जाऊं, और जिसके पास कम होता है उसे चोरी करना मजा नहीं आता. ग्रेडी मतलब लालची. तो इसको तो लालची लोग से पैसे ले लेके भाग के जाना तो गम नहीं, उनके पास दोबारा फिर से लालच का पैसा आ जाएगा. बट एक इंसान जो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि हरी सिंह अनिल को देख रहा था रोज, तो लाइक इसको चोरी करना मतलब थोड़ा एक ऐसा है कि
सुकून नहीं मिलेगा उसको चोरी करके, पता है, चोरी करने के बाद उसको सुकून नहीं मिल रहा था। एनीवेज चोरी करना था उसके दिमाग में, तो सुकून भी तलाश कर रहा था एज वेल। Well, it's time. I did some real work. I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. उसने कहा, भैया बहुत सुधर गया हूँ मैं। Anyways, मैं सुधर के भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ये पैसे अनिल के पास रहे, तो वो अपने दोस्तों में खा पी के उड़ा देगा। इससे बेटर है कि मैं ही अपने ऊपर उड़ा रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को पैसे देता ही नहीं घर में रहने के। तो ये बंदा चाहता है कि उसके घर में वो काम भी करे, उसको पैसा भी मिले, उसका डेली का भी काम चले, जबकि भूल जाता है कि उसके घर पे वो रह रहा है, रेंट नहीं देता है, खाना खाता है, उसका पैसा नहीं देता है। बट शाने को ये भी चाहिए। देखो, Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I creeped up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had no more marks on my face, though mine were mostly scars. अब वो बोल रहा है कि अनिल सो गया है, उसने अपने पैसे तो मैट्रेस के बीच में रखे हैं। फिर बोला है कि बताया है कि अब वो चोरी करने का जो सिचुएशन है, जो जगह उसने बताई है, कैसे बताया कि चांद की रोशनी खिड़की के अंदर से आ रही थी और वो पूरी रोशनी थी बैल्कनी के ऑन द बेड पे आई है। मैं वहां बैठा था ये सोच सोच के कि मैं पैसे कैसे चुराऊं। अगर मैं चुरा लिया अभी, तो मैं सुबह की 10:30 की ट्रेन पकड़ सकता हूँ लखनऊ को एक्सप्रेस, और मैं 9-2-11 यहाँ से फट से हो जाऊंगा। फिर वो धीरे धीरे बेड से उतर के क्रिप्ट कर करके ऐसे जाके अनिल के पास पहुंचा। उसने अनिल के फेस को देखा। अनिल के पास पैसा हो के भी अनिल शांति से अपना सो रहा था। अनलाइन मतलब अनिल के फेस पे टेंशन नहीं दिख रही थी, सुकून दिख रहा था। बट उससे कहीं ज्यादा टेंशन तो इसको था, हरी सिंह को, जबकि चोर था फिर टेंशन। और वो कहता है कि मेरे चेहरे पे ज्यादा लाइंस थे, और उसने एक जोक मारा है कि मेरे तो चेहरे पे ज्यादा ऐसे झुर्री तो थी टेंशन की, पर उसे कई ज्यादा तो मेरे खुद के ही मार्क्स थे, क्योंकि मैंने इतनी चोरी ऑलमोस्ट कर चुका है, डंडे खरीद चुके हुए। नेक्स्ट, माय हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मतलब मैंने चुपके से अंदर डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। हाथ डाल के उसने नोट देखा और बाहर निकाला। And I sang in the sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और उत्तर में अनिल टर्न हुआ। सोचो, हम चोरी कर रहे, चोरी पकड़ी जाएगी तो हमारा फेस कैसा हो जाता है। वैसे बेचारा अनिल हरी सिंह का हो गया। उसने पैसे तो निकाल लिए, बट उतनी ही देर में अनिल टर्न ले लिया। ये जो दौड़ा भागा अपने बिस्तर पे, फट गई थी इसकी, डर गया था ये बहुत। Then let's see, और लेके फिर वो भागा। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. यानी 50 की नोट 600 तक का थी। I couldn't live like an oil-rich Arab for a week or two. ये देखो भैया को पैसे तो चुरा के भाग गया, उसको 10:30 की ट्रेन पकड़नी की थी। जब उसने भागा तो उसने अपना पैसे वो कहाँ छुपाया था, पैजामास के अंदर ऐसा रोल करके टाइट करके भागा। फिर उसने सुकून से जाके पैसे काउंट किया तो 600 रुपीज मिले। अब वो बोला कि मैं तो ऑयल रिच, यानी मतलब अरब जैसा वो पैसे वाला बन गया। वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए लिखा है उसने, मतलब 2 हफ्तों के लिए वो बिंदास खाएगा, बिंदास घूमेगा, बिंदास भटकेगा, एक्सप्रेस की फ्लाइट भी पकड़ लेगा। 600 उसने कमाया था अनिल ने। इट वाज, वो 1 रुपया का तो चोरी कर रहा है रोज, आज उसको 600 का मिल गया। सोचो
Then, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. क्योंकि I had never bought a ticket in my life. तो उसने तो आज तक कभी टिकट खरीदा ही नहीं, उसको तो चोरी करना था एनीवेज, इसके पॉकेट टिकट भी चुरा लेना था. But dash straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage. But I hesitate. For some reason, I can't explain. But I hesitate. That I lost the chance to get away. वो पहुंच गया स्टेशन. अब ट्रेन नॉर्मल स्पीड पे जस्ट स्टार्ट हुई थी. ये तो आराम से पकड़ सकता था एक आधा कंपार्टमेंट. एनीवेज उसको टिकट लेके तो कोई एसी में बैठना नहीं था, तो जनरल या नॉर्मल डब्बे में बैठना नहीं था. बट वो हेजिस्टेट यानी हिचकिचा रहा था. चढ़ू कि नहीं चढ़ू, चढ़ू कि नहीं चढ़ू. अपने आप से पूछ भी रहा वो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा. मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं रीजन क्या दूं. जबकि वो चोरी तो उसके लिए आम बात थी, और उसने कोई से नया काम नहीं किया था. उसने वही पुराने काम को अंजाम दिया कि चोरी की और भाग गया. बट उसको पहली बार एक हिचकिचाहट हुई कि मैं चोरी करके जाऊं कि नहीं जाऊं. और इस हिचकिचाहट में लखनऊ एक्सप्रेस अपने स्टेशन से रवाना हो चुकी थी. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब तो ट्रेन चली गई. अब इसने कहा कि जैसे ट्रेन चली गई मैं अपने आप को एकदम अकेला स्टेशन पर देखा. डेजर्टेड ऑन प्लेटफॉर्म यानी पूरा खाली हो गया था. सारे पैसेंजर ऑलमोस्ट चढ़ गए थे. मैं अकेला था. बट अब इसको आइडिया नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस पैसे को लेके कहाँ जाऊँ. और इसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. इसने कहा मेरे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, और मैं जिसको जानता हूँ तो उस बंदे का तो मैंने खुद चोरी करके भागा हूँ. अब ये करे तो करे क्या. मतलब अब उसके पास ऑप्शन नहीं है. पैसे रखूं कहाँ, भागू कहाँ, जाऊँ कहाँ. पैसे तो मिल गए बेचारे को. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, will show only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. उसने कहा मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े छोटे मोटे आदमी को देखा है जिसकी मैंने चोरी किया. अमीर लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे मेरे पैसे चोरी. गरीब लोग बेचारे अपना लेते, अब जो चला गया भगवान भरोसे गया था. बट इसने कहा अनिल ना अमीर था ना गरीब था. उसका अगर पैसा गया तो उसको कम नहीं होता था, बट उसके पास से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाएगी, वो है ट्रस्ट. क्योंकि उसने एक ऐसे बंदे को ट्रस्ट किया था जिसे वो कभी जानता ही नहीं था. हम तो अभी भी नहीं करेंगे. फ्रेंड्स तक का नहीं करेंगे तो फिर गैर को तो मतलब ही नहीं है. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and my pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were tapped from the rail. अब ये बाजार से मैदान में पहुंच गया. जैसे मैदान में पहुंचा जोर से बारिश आ गई. अब बारिश आ गई
उसके तो पैजामा और शर्ट भीग गए। फिर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मेरे पैसे भी भीग गए। वो फटफट भागा बाजार के इसमें और शेल्टर में बैठा, शेल्टर यानी क्लॉक टावर के नीचे बैठा। और जैसे ही उसने अपने नोट्स को बाहर निकाला वो सारे गीले गीले हो चुके थे। Anil's money. In the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. अब इसे थोड़ा ना अपने ऊपर से रिग्रेट फील होने लगा कि तो अनिल के पैसे, वो मुझे सुबह खुद से पैसे दे देता है, ये ले जा सिनेमा दे, ये ले बाजार में से ये लेकर आ, ये पकाना है आज, ये खाना है। तो उसे सब बुरा लगने लगा। अब ये सुबह उठ के ये सब चीजें तो होएगी नहीं जो डेली होती है। अब तो मुझे पैसे तो मिल गए, अब वो क्या करेगा? तो उसको ना अंदर से ऐसे लग रहा था कि अब क्या करेगा, क्या होएगा। तो ही वाज वेरी उसको पूरी एंजाइटी फील हो रही थी। I had forgotten about them in the excitement of the whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was just a matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. अब ये सोचा कि अरे यार पैसे चुरा के मेरे से क्या, मुझे क्या मिला? मुझे इतना सारा पैसा चुरा के भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये कहा कि चलो अनिल के पास ही चले जाते हैं, पर वो अनिल के पास जाएगा तो उसे तो सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने उससे पैसे चुराए हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं उसे बता भी दूं, बट मेरा रोज की ट्यूशन जो चलती है उसके पास, कि उसने मुझे सिखाया है ABCD, जो मुझे लेटर लिखना सिखाया है, जो मुझे उसने पढ़ना सिखाया, इसका क्या? तो अब ये बोला अब इसका क्या होएगा कि जो मुझे पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, समझना सिखाता है, मुझे एक रिस्पेक्टफुल मैन बनाने का बताया इसने। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ अनिल के पास जाने की, अपने दिमाग में। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept on the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress. I slipped under it with the notes. ये भागा नर्वस में, ये गया अनिल के पास गया। उसने फिर डिस्क्राइब किया कि डोर ओपन करके गया, मूनलाइट आई थी, अनिल गहरी नींद में ही सो रहा था। ये उसके बेड के पास गया, जिस तरीके से पैसे रखे थे उसने वैसे ही पैसे को अपने मैट्रेस के अंदर, अनिल के मैट्रेस के नीचे रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. फिर इसने देखा कि सुबह ये लेट उठा जानबूझ के ताकि अनिल चाय बना ले एंड मैं पकड़े ना जाऊँ, और फिर ऐसा। तो he stretched out his hand towards me. उतने में उसने अनिल ने 50 रुपए देके उसके ऊपर पॉइंट किया। अब इसका हार्ट सैंग, मतलब धक धक करने लगा इसका हार्ट, घबरा गया। ही फेल्ट डिप्रेस्ड। इसने सोचा कि लगता मैं तो पकड़ गया भैया, जिस तरीके से मेरे सामने है जो वातावरण दिख रहा है। बट अनिल बोला I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. उसने कहा कि मैंने कल पैसे कमाए थे 600 रुपीज, बट इसने 600 नहीं कहा, इसने कहा मैंने कल पैसे कमाए थे, अब से मैं तुझे पगार दूंगा, ये ले तेरे 50 रुपए। My spirit rose, but when I took the notes, I saw it was still wet
from the night train. और जैसे इसने पैसे ले लिया, इसने देखा कि पैसे तो अभी तक गिले थे और इसका हार एकदम से ये हो गया, अरे बाप रे, मुझे तो बैठे बैठे 50 रुपए मिल गए। हाँ, मैं 1 रुपए का घपला करता था, सुबह सुबह 50 रुपए की पोनी हो गई। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। फिर अनिल उसको कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts. फिर इसने क्या किया, इसने कहा, ओ रे वाह, मेरे को तो पैसे मिल गए 50 रुपया, प्लस मैंने तो लिखना पढ़ना सीख लिया, अब तो मैं सेंटेंस भी लिखने वाला हूँ। तो इसका जो खुशी बाहर से अपीयर हुई थी अंदर से, वो उसको एफर्ट्स आने, पहले तो वो बटर वाली स्माइल दे रहा था ना, ये करके कि अरे पटाने वाली, शुनशन वाली, दबदबी आंखों वाली स्माइल था, बट ये वाली जो स्माइल थी ये रियल थी, बिकॉज ऐसे स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल किस चीज का किया था? स्ट्रगल चोरी का नहीं किया था, स्ट्रगल अपने आप को दिखाने का किया था। सबसे बड़ा स्ट्रगल इसका ये था कि चोर होके चोरी छोड़ने का सोचा। दिस वॉज अ वेरी क्यूट स्टोरी, आई मे से, अबाउट रस्किन बॉन्ड, कि एक थीफ को एक ट्विस्ट कैसे दिखाया, चोरी करके भाग गया, फिर रियलाइज हुआ। ये तो वैसा वाला सीन है ना, जा जिंदगी जी ले अपनी जिंदगी, छोड़ दे के फिर पकड़ लेना, फिर पकड़ लेके छोड़ देना वाला, ऐसा था। ट्रेन तो छूट गई, रियलाइज हुआ। और ये बात अनिल को भी पता थी, ये बात हरी को भी पता थी कि हरी ने चोरी किया है क्योंकि नोट गीली थी। बट अगर आपको लगता है, अगर अनिल बोलता था कि तूने पैसे चुराए, तूने ऐसे किए, तो क्या वो ट्रस्ट अनिल और हरी के बीच में रहता था? नहीं रहता था। तो इसमें एक और एक चीज होती है, सिर्फ चोरी ना करने से अलावा भी ऐसी होती है, लेट गो सम टॉक्स। समटाइम इट इज बेटर टू बी क्वाइट rather than talking and talking and talking. You know, silence speak much louder than words. It's a phrase. Here it also means that अगर अनिल अपना मुंह खोलता था, अगर अनिल अपने बातें करता था, तो शायद हरी अपने आप को कंफर्ट नहीं पाता था, और माइट भी अनिल की तरफ उसका जो बिहेवियर था वो नहीं होता था। अनिल भी बहुत अच्छा था, जिसने उसको पे करना शुरू कर चुका था, 50 रुपीज दिया था, प्लस उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी राइटर था। So these were the main, you know, block letters values that has been input in this chapter. I hope you understood this chapter and you will take this as a positively way. Okay. So insert the appropriate word phrase given below in the sentence. First one, I dash the school gate when I heard the school bell ring. Dashed. Dashed. I dash to, yani run to. DASHED, first answer. After the death of my pet dog, my dash when dad got me a new के बाद क्या वर्ड है? क्या है? Pup. हाँ, पप यानी पपी। ओके, मुझे वो हाइड हो गया था। बोलो। Spirit rose. My spirit rose after the death of my pet dog. My spirit rose when my अच्छा लगा डैडी ने लाया। ओके, do not stoop to dash just to gain something for someone. Flattery. Do not flattery just to gain something for someone. The artist complete his painting Fits and starts. fits and starts. The crime went dash for 11 years. Undetected. When the baby saw its mother, it gave a dash smile. Appealing. Appealing. Good. Next. Find from the text the collocation for the following. Dash dog, Stray dog. stray dog, dash man, Greedy man.
Ticket, Office. Office. ticket office. Dash slowly, Walk. Walked. Walked. walk slowly. Dash diesel, Light. light diesel. Dash sentence, Whole sentence. dash sentence का आंसर क्या है? Whole sentence. Full sentence. Whole sentence. Dash spirit. Rose. Divine. Roses. Huh? Rose. Divine spirit. Divine. Ma'am, rose. Roses. Roses नहीं rose. R-O-S-E. Alright. Spirit. So collocation are the words that is known as also compound words. Compound words कैसे होते हैं? मतलब जैसे neighborhood तो neighbor के साथ hood मिला हुआ होता है, वैसे ही हमें इसके आगे का text में से ढूंढना है. Dash dog, उस sentence में stray dog लिखा था. Dash man, अभी greedy man भी हो सकता है, rich man भी हो सकता है, poor man भी हो सकता है, but it should be depend upon the passage, the passage आपको जो दिया है, ठीक है? So, अगर आप अपने मन से लिख रहे हो तो मन को आपके दे दो फिलहाल किसी और को, और ट्राई करो कि आप पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखें. नेक्स्ट हम उसके अभी नेक्स्ट वाला करेंगे. कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. ऑयल, Rich. रिच. 50 Rupee note. rupee note. Easy, Going. very good. Dash tower. Clock tower. Moon, Light. yes. Moonlight. So ये समझ में आ रहा है आपको कैसे है? You know एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में ना ये हमेशा आते हैं. एंड इट कंटेन 1 मार्क्स. इजीली बच्चे को 1 मार्क्स देते हैं. सिर्फ उसे आँख खोल से देखना पड़ता है और देखने के बाद ढूंढना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है और 1 मार्क आपके. It comes, learn how to find it out. It's easy and I know most of the students will do it. आप में से हर कोई कर ही लेगा ये, but still इस पे मत अपने मार्क्स को रिड्यूस किया करो. Pick out from the story 3 to 4 example of code mixing, that is English word used in Indian words used in English. Maidan. Pajama. Bazaar. Pajamas, Maidan, Jumna. Bazaar. Bazaar. और एक Jumna. जुमना शॉप, स्ट्रीट शॉप जो थी. ओके. अदर्स रेस्ट आपको आंसर्स मिल रहे हैं? कशिश, मैदान. अजय, Yes. हाँ, तीर्थ, इवन यू आर गेटिंग ना? ओके. Read the story carefully and complete the table. How many characters were there in the story? 2. 2. Name? Name? Anil. Hari. Hari Singh. हरि सिंह की एज क्या थी? 15. और अनिल 15. की? 25. अनिल physical appearance? Tall, easygoing and Okay. और हरि सिंह की? thin, scars on the face. हाँ, scars on the face. Money earned by हरि सिंह और अनिल. अनिल कितना कमाता था? Fits and starts. Fits and starts. जैसे जैसे उसको मिलता था. और ये और Hari stealing. stealing, Stealing and cheating. cheating on the peoples. Quality, Kind, simple, easygoing, pleasant. Trusting. Good. Complete the given structure. Anil kept Hari as a cook because He wanted someone to cook for him. Perhaps he also felt sorry for Hari. चलेगा. You can write by this also sentence. तो उसको cook की जरूरत थी.
Hari was grateful. क्यों? Because Anil was teaching him to read, write, and Right. add Very good. numbers. ग्रेटफुल यानी वो उसका शुक्रगुजार था क्योंकि अनिल उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था. हरी continued making money by stealing. by stealing and cheating on people. Anil didn't hand Hari over to the police. Because he wanted Hari to realize his mistake. Very good. हम लोग को सेंटेंस में तो लिखा नहीं है पर उसे पता चलता है ना कि वो पुलिस क्योंकि वो चाहता था ना ये सुधर जाए और जो कि वो सुधर ही गया था. अब सुधरे हुए को काई को पुलिस को देके फिर से बिगाड़ने का. Moral of the story is You gain trust when you trust others. okay. सब बताएंगे मुझे एक स्टोरी. Moral. Love and care your polite words can be the point in one's life. Very good. अजय, कशिश, तीर्थ और कुंजन. बोलो जल्दी. कशिश. Moral of the story. मैम एक और बोल. वो ना वो बोलना मिस हाँ बोल. Better late than never. Better late than never. Okay. तीर्थ. Yeah. Moral here. Moral. Always accept your mistake. Always. Accept your mistake. Always accept your mistake. Okay. But complete कर इसको sentence में. अजय. Yes. अजय तुझे मैंने अपने आप को देखने के लिए नहीं बुलाई. Moral of the story बोल. Think and explain in your own शब्द. ठीक है. And in your notebook. Why did Anil employ Hari as a cook, although he could not afford to pay him? Ajay, first answer. Ajay. Hari Singh gave Anil his best appealing smile. The smile must have won Anil's confidence and touched his heart. Anil told Hari that he would give him food if he could cook for him. ठीक है, ये तूने catch करी from the content from the textbook. Write in your own words, then you need to explain in your way. ये sentence को आप अपने own ways में बताओ. मैं यही चाहती हूँ कि उठा के मत चिटका दो. कट कॉपी पेस्ट नहीं करना. तो छोटा सा तो सिंपल सा बच्चे वाला आंसर है ये.
Anil wanted someone to cook for him. He felt that perhaps Hari could cook for him and he returned he could feed him. Yeah, exactly. Simple. उसको अपना खाना like he just wanted a cook for himself because he is having a busy day schedule and doesn't have a time to cook meal for himself. Thus, he appointed Anil Hari as a cook for even though he was not affordable. Simple. In your own मैसेज हमको टेक्स्ट से लेना है पर लिखना हमारे ओन वर्ड्स में क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी कट आंसर्स में मार्क्स कट उस वक्त नहीं होएंगे अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो याद रखना डियर स्टूडेंट्स दिस इज द क्राइटेरिया दैट वी नेवर जज योर ओन ओपिनियन वी जज ओनली ऑन द ग्रामेटिकल और द स्पेलिंग मिस्टेक दैट्स इट पर आपके ओन ओपिनियंस के लिए कभी कोई आंसर्स को मार्क्स कट नहीं करती इवन दो इफ यू राइट कि अनिल ऐसा था वैसा था या वो ऐसा था नो even if you write 4 pages in your own words also. It's only what we judge is the grammatical mistake and the punctuation. What did Hari learn from Anil in the beginning? In the beginning, Hari had learned to cook from Anil. He made tea in the morning and then went to buy daily supplies. Hari also learned to write his name from Anil. Very good. Good. सबको समझा? Next. Did Anil hand over Hari? What effect would it have on Hari? Bhagyalakshmi. Yes, ma'am. Third answer. I'm thinking. Okay. Can I say? Yes, dear. Anil was probably too kind-hearted to hand Hari over to the police. He might also thought that he could try to make an honest man of Hari if he had handed Hari over to the police. Hari would probably have bitter and angry and would continue in dishonest way. कहीं का तो झोल लग रहा है मुझे आंसर Hopping. No, from textbook means take Good, it but exact. no good. अनिल को हैंड ओवर इसलिए नहीं किया था पहले तो हमको देना है कि why didn't Anil hand over Hari to the police just because वो गिल्टी फील करता था एंड अनिल हमें इसमें अनिल की तारीफ बताना है अनिल की तारीफ बताना है जैसे कि ही वाज अ वेरी easy going person kind hearted that's the reason he trust Hari Singh without knowing that person and फिर effects बताना है what would be the effects on Hari so Hari was on the stage of becoming a good person if he will be caught so he might be you know missed himself and misguided himself by doing this thing that cheating and everything and he might not trust any other person in the life he might not learn anything from the other person तो हमको इसका इफेक्ट भी बताना है okay do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective justify your answer Kashish take your time Papa. हाँ? Papa. पप्पा नहीं चाहिए अनिल चाहिए अनिल कुंजन अनिल चाहिए
Kassis, sleeping. Kashish. Let I ask you a question that do you feel Anil's way of handling a kid like Hari was effective? Justify your answer in your own shape. Yes. तो अगर यस भी लिखी तो भी बोर्ड वाला कुछ नहीं देने वाला तेरे को. अंडे भी नहीं देगा वो. अजय देवगन. Yes, ma'am. Yes, dear. Can I get an answer from you? If you are free from your shooting and production and everything, that do you feel Anil's way of handling a kid? मुझे तो लगता है अजय तो बोरिया बिस्तर लेता आएगा और सोता आएगा. I'll say. Speak. Yes, Anil way of handling a thief like Hari was effective. Anil had realized that Hari really wished to learn to write a name or full sentences. He wanted to get education. Okay. Add up. Yeah, so by forgiving him and not giving him to the police, he might change. Okay, that's true. He might change. तो ये रीजन था जो हम लोगों ने अभी से पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. मैंने किसी को कुछ भेजी हूँ, उसका रिप्लाई देने का कोई अगर कर सकता है तो बेटर है. So Anil's ways of handling them was very effective. Yes, it has helped Anil and Hari to have a bond between them. There was a connection between them as a friendship zone, and it was still last long for them because nor Anil showed any discomfort to Hari, nor Hari had discomfort Anil in any way. Though Hari was a cheater, he is a robber. He robbed also Anil. But even though when he realized being uh, doing such false things, so he was back to Anil and he did not confess that he was the one who robbed it. But yet he was confessed by saying by staying there and learning sentences and growing up as a man with Anil was a way that it justify Hari to be Anil to be a very good person, good personality, matured person, a man. So you can write it down.
स्टिल मैंने जिसको जो आंसर क्वेश्चन दी अभी तक, मैंने जो प्राइवेट मैसेज की, मुझे उसका आंसर नहीं मिला. डोंट मेक मी टू डू इन पब्लिकली. हाँ, okay. Next, what tact had Anil used to change Hari's dishonest way? कुंजन और कशिश आंसर्स दो. Ma'am, tact means टैक्टिक्स यानी उसके तरीका क्या था, तौर तरीका. अनिल डिसऑनेस्टी वे, चालाक बनना, मतलब क्या टेक्निक यूज किया उसने. Hari Singh was an teach him to बोल बोल. teach him to learn and write. ओके, और Giving him work. ओके. ऐसे नहीं बोलना हमें, देखो कि उसको टीच एंड राइट. हाँ, अभी ना उसको हमको इलेबोरेट अच्छे से करना है, अच्छे से हमें प्रेजेंट करना है. तो प्रेजेंट हमेशा जब आप करोगे ना, तो प्रेजेंट ऐसे नहीं करना है कि छोटा छोटा सा पंच देके सेंटेंस को. मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म, नरेटिंग फॉर्म में. मैम बोलो. Anil teach the Hari Singh. Then Hari Singh feel that he can drop anything and he can drop anyone. He feel that writing writing of writing that uh, uh, मुझे तुझे तेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ रही है, तू ही लिखी है ना. हाँ, yes. देन तूने अब भी जस्ट लिखी है, और अब भी के अब भी तुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखी है. मैम उतना ही अभी आगे का जस्ट ये कल वो तो वर्ड कंप्लीट कर, क्या लिखी है.
Ma'am, Try. Anil decided not to reveal anything to Hari. He did Hmm. not want him to realize that Anil knew about his robbery. Anil wanted Hari to realize he was doing wrong and to accept and change his way. Anil therefore kept quiet and said nothing. Even in the end, Anil gave Hari a very note rupee to show him that he knew about his robbery, but he would not say anything. Very good. Correct answer. Well done. This is the way I want the presentation कि हम tenses का भी ध्यान रखें प्लस आई मी माई सेल्फ जो बोल रहे हैं वो भी ध्यान में रख के रखें कि हम किसके बारे में कर रहे हैं. So good way. Good Mispa. And the smile came by itself without any effort. Say why, when. Do people give fake smile? तो पहले तो हमको बताना why do people give fake smile? वेरी सिंपल. फेक स्माइल कब देते जब कोई चोरी पकड़े जाती है बचने के लिए. Other else you are lying to someone, you are dishonesting someone, you're distrusting someone, you're cheating on someone, or you buttering someone that you want something and then so we do fake smile because of so and so reason. And in this case, in the story itself, the fake smile and the smile came out by without. In the story also, the boy Anil, the boy Hari, used his genuine strong power that about a fake smile giving to the people and robbing the people. आप ऐसे narrate कर सकते हो. But at the end, when he realized the mistake what he had done in his life and what he was going through all these stages till 15 years of age, and when he realized that it is nothing much to cheat rather than to be a grateful and respectful person. So when he realized his mistake and when he realized that the person human world is made up of very kind heart, it is not only just cheating and ill effects that goes in the world, but it's also about the trusting, it's about love, it's about care. So that made Anil Hari to smile without efforts. That was a real smile which come out, and it is a happiness which show on your face. The emotion is being played in such a way that it burst out with a very simplicity. तो उसकी एक सिंपल स्माइल आई थी, लाफ नहीं आई थी, जॉस राउंड्स नहीं थे उनके. Understood? Write a sketch of Hari Singh with the help of the following using point. Hari Singh का बैकग्राउंड क्या था? चोर था. Hari Singh was a 15-year-old boy, but he was already a thief. He was experienced and fairly successful thief. He changed his name every month to stay ahead of police and former employees whom he cheated. वेरी गुड. फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया था ये सारा फर्स्ट पेज पे. His dishonesty. तीर्थ, उसकी डिसऑनेस्टी कैसी बताइए? Not well. तीर्थ, cold. By cheating on his Yes, Kashish, you're saying something. ma'am, 1 minute. Okay.
What was the aspiration of Hari Singh? Um, पता नहीं बताऊंगी तो मैं आंसर्स को 5-5 टाइम लिखवाऊंगी तुम लोग से. मैम एस्पिरेशंस मतलब एस्पिरेशन यानी मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरी ये चाहत है. उसकी हरी सिंह की क्या थी? उसकी थोड़ी ना डॉक्टर एम बनने की चाहत थी. फर्स्ट उसका एस्पिरेशन था कि वो ड्रॉप करके भाग जाए, बट सेकेंड उसका था he had changed his mind by converting his mind to learn. तो उसे रीडिंग उसको सेंटेंस सीखना था क्योंकि उसने नंबर सीख चुका था, वर्ड सीख चुका था, अपना नाम लिखना. So the next thing was his aspiration to it's like to learn the sentence. वो sentence formation के लिए बहुत ज्यादा sentence का उसने 600 रुपीज दाव पे लगाई थी. Yes or no? तो सिर्फ उसको एक सेंटेंस सीखने के लिए उसने 600 रुपया दाव पे लगा चुका था और अपनी होल लाइफ की लग्जरी लाइफ को छोड़ के just to stay at in the balcony with a limited amount of money. तो उसकी एस्पिरेशन ऐसे लिखी गया. His courage to change himself. क्या था उसका courage to change himself? when Hari realized that Anil knew everything about his evil deeds, he decided to change into a better person. This must have taken a lot of courage, but Hari decided to give up all his bad deeds. Okay, good. ये भी लिख सकते हैं, बट इसमें थोड़ा एक ग्रामेटिकल मिस्टेक था कि वो बार बार अनिल और हरी के ऊपर टॉपिक था. हमें सिर्फ हरी के बारे में बताना है, तो हरी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्टली. It took much more efforts to change because even though the person knowing about his fault deeds and comforting himself in that position was a big task for Hari. So it took efforts and patience to be courage to himself by living all the bad deeds and changing into just one night into a good person. Okay. Next, same WH question to get the answer of the underlying below. I hurried back to the room. Where did I hurry? Where did I hurry? Next, I had made a study of men's faces. What study I had made? What study I had made? Which What had I made? What had I made? I had made a study of men's faces. what did I made? What did I made? What did I made? Hard नहीं आएगा. I drew them out without a sound. Where Where did I drew? So out without a sound. The poor man showed acceptance. who showed acceptance? Who showed acceptance? I made tea in the morning. When did I make? When did I make tea? So in the morning. Imagine that Anil catches Hari red-handed when Hari is stealing the money from
under the mattress. क्या हो सकता है दोनों के बीच में शॉकिंग वाला कॉन्वर्जेशन? बताओ, मेरे को कोई तो भी एक स्टोरी कंपोज करके बताओ क्या हो सकता है. लेट्स टेक मिसबा एंड भाग्यलक्ष्मी. मिसबा विल बी हरी एंड भाग्यलक्ष्मी विल बी अनिल. चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ. रैंडमली जो बोलना है, जो करना है, हिंदी में बोलो, विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, और यू ट्राई विच एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल, बट मेक इट श्योर कि आप दोनों कन्वर्ट कर रहे हो. स्टार्ट. तो पहला, सबसे पहला हरी. Sai will be the narrator. Okay. Anil put the hand under the mattress, and suddenly we see that Anil eyes open and he saw Hari. So Hari was red-headed. Start. Bhagyalakshmi. Hey, what are you doing? ये तो क्या कर रहा है? No, nothing. No, nothing. I was just searching for something I misplaced. You are stealing my money. Hey, are you stealing? Oh, sorry. Anil, I'm off. I shall late to do the shopping. क्या बोल? भाग्यलक्ष्मी अपने बहन से लड़ाई कर रही. सोच अभी तुम. अब कर फटाफट. क्या बोला तूने लास्ट सेंटेंस? इस बार लास्ट सेंटेंस क्या बोला? I was not stealing your money. I was curious to count them. So what were you Since doing? you taught me how to count, I was trying to count your money. But why? भाग्यलक्ष्मी तेरे 600 रुपए I जा was रहे हैं. curious. 600. क्या? मेरे को भाग्यलक्ष्मी बेटा पैसे जा रहे, पैसे इतना हाँ. आराम से. वाई 600 रुपए जा रहे हैं. अनिल है तू, तेरे मेहनत की तेरी बुक छापी है, वो बुक के पैसे कोई चोरी कर रहा है. अनिल, व्हाट आर यू डूइंग? हाय एंड ऑल. यू आर फॉलन asleep. यू गॉट नो दैट अनिल्स तो ऐसे आराम से पूछेगी तो चोरी करने आया था. डिसाइड कर पहले फर्स्ट. आई वांट अ डायलॉग्स. डायलॉग समझता? डायलॉग शॉर्ट, कंपोज शॉर्ट डायलॉग. एक शॉकिंग न्यूज मिली है तुझे, एक अनसडन तुम्हारे सामने अटैक हो रहा है, तुम दोनों को उस चीज के ऊपर डील करना है. गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस. वी आर द ऑडियंस. जस्ट गिव द मैसेज. क्या आप लोग सेंटेंस क्या लिखोगे? हाँ चोरी हो गए, पैसे काउंट कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस नहीं चाहिए. आई वांट अ डायलॉग. Starting से start करते हैं. फिर से स्टार्ट. एंड इट शुड बी विद इन अ क्विक हाँ. सेशन. क्या बोलूं अभी, ऐसा वाला नहीं चाहिए मेरे को. और बाकी लोग नोट डाउन करेंगे, हाँ, नहीं तो पिटेंगे मेरे हाथ से. स्टार्ट भाग्यलक्ष्मी. Hey, you, what are you doing? Keeping your hand under my mattress. No, I was just searching for my thing I misplaced. What was the thing you misplaced? There's money under it. Oh, sorry. I was just curious to know what you are hiding behind my. ओके चलेगा ये सेंटेंस. What curious? There's a money under it. It is. ओके There's high amount of. ओके ओके. आई स्टॉप हियर. वन थिंग. आपके जो दोनों कॉन्वर्सेशन के दो डायलॉग्स जो थे ना, ओके, बट इससे क्या पता चल रहा है? दैट यू लर्न दैट नथिंग हैड हैपेंड. यू डिड नॉट फाइंड दैट अनिल हरी ने पैसे निकाल दिए. इट वाज जस्ट अ हैंड. अनिल गेव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय सेइंग दैट मैं तो सिर्फ देख रहा था, मेरी कोई चीज यहाँ पर हो गई है. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड, अनिल ने वही अपोलोजाइज कर
माफ कर दिया हरी को कि फाइन यू विल नॉट फाइन। अब तुम लोग नेक्स्ट क्या टॉपिक पर डील कर रहे कि मेरे पैसे उधर थे और तू पैसे काउंट करने वाली है। When you are saying that first thing that you are searching for what you needed, then second topic नहीं होना चाहिए, या तो first initial dialogue होना चाहिए. I was very curious to know what you were hiding when you came. You put something under the mattress, so I was very curious to know what it is. Then you might be say like Anil बोल सकता है, it was a money that I have bought and all that. ठीक है, ये सब हम dialogues put on कर सकते हैं. So there are many stories that you can compose at one particular time. और आप इस सब को harsh word में use कर सकते हो by saying आप हरी को हमको पता है अनिल का कैरेक्टर बहुत स्वीट था, वो काइंड हार्टेड था, तो उसे जंप ऑफ नहीं किया है, बट यहाँ पर क्या बोला है कि शॉक चाहिए हमको, एक शॉक. अनिल वो शॉक एंड देन हरी रिपीटेड अपॉलजीज. हमें ऐसा दिखाना है कि हरी ने पैसे चुरा चुके हैं. ठीक है, अनिल को ये बात सामने पता चल गई है, तभी हरी को डर के उसे माफी मांगना है कि हे आई एम वेरी सॉरी, आई वाज क्यूरियस सो अबाउट द मनी दैट आई सॉ yesterday and you were not paying for me, so I thought I should steal your money and should run away from you, and I will have a luxury if I get all this money in my hand. So you can compose a dialogue in such a way also ना, क्योंकि शौक बताना है, पैसे तो चुरा लेना चाहिए. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अनिल ऑलरेडी स्वीट बन रहा है कि ऑलरेडी था. हरी का तो कुछ नामो निशान ही नहीं, हरी ने कुछ पाप किया ही नहीं है, जबकि क्या दिया, हरी ने पैसे चुरा लिए हैं. तो हम लोग डायलॉग प्लीज 10 स्टार में आ गए. हे हाय नहीं करना है, सो रहे हैं, अचानक से खबर मिली कि पैसे चोरी हो रहे हैं, तो हे हाय नहीं चलता इधर. Are you getting how you will write the story? Dialogues. और कशिश समझा? फिर हे हाय नहीं करना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करना है. शौक हो गए उसे चोरी कर. अगर हमारे घर में ही जीते जीते ही बहन भाई ने कुछ चीज ले तो उसको मार डालेगे तुम लोग कैसे. और यहाँ इतने स्वीट बन रहे, हे व्हाट आर यू डूइंग. हाँ, बड़े पोलाइट बन रहे हो. Don't do anything. Okay, okay. I just tucked my bunny inside my mattress. Okay, okay. It's okay. I was curious to count. वाह रे वाह, पहले तो पता ही नहीं है कि हमने अंदर क्या रखे, और चले हरी सिंह काउंट करने के लिए. See your dialogues. Here you get the least marks. Continue with the flow. Your flow is that आपको पहले शॉक लगा है, तो शॉक लगने में हे हेलो नहीं रहेगा, और शॉक क्यों लगा है वो वजह पे डिस्कस करो. Are you getting? You will write the story. ये वाला मैं एक 9th वाला होमवर्क दूंगी कि compose a story, short dialogues. बाकी तुम लोग का डिस्कस हो चुका है. I hope you have written everything in detail in your textbook, notebook, wherever it was comfortable. But this the 9th one, that dialogues between both Hari and Anil, you will compose. और बेटर होगा उसको आज ही और अभी करके हटा दो. It will take only 15 minutes because you are in the flow कि आपको क्या लिखना है. I'm not giving 15 minutes of my, but you can write it down. खत्म करो on the spot, आज के आज खत्म कर दो. ठीक है, अभी फ्लो में है, याद है, सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो पता रहेगा कि कैसे डायलॉग फॉर्म होगा. फिर थोड़ी देर बाद लिखोगे या कल लिखोगे या परसों लिखोगे, रात में लिखोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका 2-3 वर्ड्स यहाँ हो जाएंगे. बेटर है इसको खत्म करो. Got it? Other rest you don't have to write it down. I'm giving you less work. एक पेज का काम दे रही हूँ. खुश रहो, सुखी रहो, और हे और हाय हेलो मत करो. ठीक है? Any doubt in the lesson? मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जिस जिसका होमवर्क मुझे मिला है, कशिश का मिला है, तीर्थ का तो मुझे उस वक्त मिल गया है, क्या नाम, मिसबा का मिला है, भाग्यलक्ष्मी का नहीं आया अभी तक. वो थोड़ा कंप्लीट करके भेज देती हूँ. थोड़ा ना, थोड़ा, ये थोड़ा कि ये थोड़ा, मतलब है हाथ ऊपर नीचे मतलब है. डू इट फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम भाग्यलक्ष्मी, बी ऑन टाइम. ओके, others rest I have got.
but sorry, I did not yet correct it. I will correct soon. ठीक है? Any doubt? Nothing ना. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको एक ही लास्ट होमवर्क करना है ये वाला चैप्टर का. कल भी मैं इंग्लिश ही लूंगी. Telling again. Okay, I'll do English only. Because English का थोड़ा वास्ट है क्वेश्चन, इसलिए मैं सोचू उसको पहले खत्म कर देंगे. ओके, क्योंकि इसके बाद हमें ग्रामर, राइटिंग स्किल, तो जब वो रीओपन होएगा तो हम मेजर फोकस वहां पर करेंगे. क्लियर? और आपकी स्कूल से कुछ नोटिस मिली है? स्कूल में स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन वीडियोस का? Yes. No, ma'am. सिर्फ कुछ जन का हुआ है? Yeah. जूम पे ही है? हाँ. बाकी किसका? मिसबा, गुरुकुल? नहीं मैम, स्कूल का कुछ होमवर्क भी नहीं आता. नहीं लगता. Tirth, which school you are in? ऋषिकुल. ऋषिकुल. ठीक है, तो मैं मैम को बुलाती हूँ. हाँ मैम, मैम बोलिए. हाँ, इनको तो मैम स्कूल से भी कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा. बोलो 10th स्टैंडर्ड पहुंच हाँ गए. ना, एक्चुअली तीर्थ का कुछ तो 18 को एग्जाम है शायद, उसकी मम्मी बोल रही थी मुझे. तीर्थ Yeah, तीर्थ yeah, it's शायद से वो मैम रिकॉर्डिंग ऑफ करो ना, मैम रिकॉर्डिंग ऑफ करो ना.